Justice lage, justice lage, justice lage. अगर एक I may be a final year student, I'm still not passed out, but still I'm really concerned about my future. Like in English, students are really concerned about their future. They really don't want to be the different candidate. Like today we have conducted a rally over the leakage of papers, leakage of prestigious exam paper under the commission called APPSCC, that is Arunachal Pradesh Public Service. Like ये जो हम लोग ये किया है, जितना भी रैली किया है, इसको सिर्फ अरुणाचल के स्टूडेंट को सिर्फ कंसर्न नहीं है. This paper leakage and corruption is not only confined to Arunachal. I think in most of the state, I think in every state, like in the areas we have 8 different states, one and all India as a whole. And everyone has attended the meeting. They have voluntarily participated the meeting. Their intention is clear. Their motive is clear. They are totally against the corruption practices which are currently happening in Arunachal and India as a whole. We are really concerned about our future. We really don't want to be the deprived candidate. हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कंसर्न है. Like जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, those who are doing the hard work, they are not waiting up. But those who are doing nothing, वो अपना घर में से पढ़ा हुआ है, एग्जाम पेपर खरीद लेता है, जिसके पास पैसा होता है पेपर खरीद लेता है, वो लोगों को जॉब मिल जाता है. This is not a good thing. APCC is not a private property. आप लोगों से पता ही है, APCC प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. स्टूडेंट लोग अपना चाइल्डहुड से ड्रीम बना लेता है कि हम फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, हमारा ऑफिसर बनेगा. बट बिकॉज ऑफ सम लाइक इवल मेंटालिटी पीपल बेच देता है, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेता है, अपना जागीर समझ लेता है, वो लोग बेच देता है और बच्चा लोग को ऐसे डिप्राइव करे. That is why the unemployment rate in our country is increasing day by day. अभी स्टेट गवर्नमेंट में तो इतना पोस्ट निकालता है, but still because of some people, those who are in the post, because of them only, like हम लोग का APCC का चेयरमैन सेक्रेटरी जितना भी हो गया, वो लोग अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए सबको डिप्राइव कर देता है. They are actually the mass murderer. Because of them only we are getting, like we are being deprived. Students are being deprived. और हम ये जितना भी outsiders, actually those students who are not from Arunachal, I extend my deepest gratitude on behalf of Sun, on behalf of PEN Arunachal Joint Steering Committee. I extend my deepest gratitude to all the students from different states who have participated in this meeting. They have proved that corruption has no community, no religion, no boundary. Corruption itself is a corruption. Student Union of Nearest, PEN Arunachal Joint Steering Committee is totally against the corruption.
and we are standing strong with the deprived and aggrieved candidate of APPSCC. Brother, अभी आपने जैसे बोला APSCC is really a hot topic right now Yeah, and yeah. you are into support, so you are holding this rally and all. लेकिन अभी गवर्नमेंट का तरफ से एज रिलैक्सेशन एंड मेनी मोर अदर्स उसने डिक्लेयर किया है, बहुत सारा को अरेस्ट भी किया है. तो आर यू गाइस सेटिस्फाइड विद दैट एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? Actually, age relaxation, I think we need to have some kind of debate. But about this arrest, I think बोलता है ना, like SIC have catch only small pieces. जो छोटा मोटा पकड़ता है ना, जो छोटा मोटा मछली को सिर्फ पकड़ता. Like PEN Arunachal Joint Steering Committee, the entire student fraternity of Northeast and India as a whole, हम लोग तो वही चाहता है कि जो कमीशन का सबसे मेन वाला है वो लोग को पकड़ना चाहिए. And strict action as per the law must be taken against them. क्योंकि वो लोगों के कारण से actually they are mass murderer. इतना सारा आदमी को डिप्राइव करके रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते रह रहा है. बच्चा लोग ऐसा है कि like within my BTech career हम लोग को ऐसा है कि इतना सारा practical assignment submit करना. We need to submit the assignment practical, so many projects, this whole things are there. But still पास आउट होने का तो हम लोग रियली कंसर्न है कि मेहनत करके भी कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है. क्योंकि कुछ कमीशन में एक दो चंद आदमी के कारण से वो लोग करीब जिसका पास पैसा है वो लोग तो ऐसे निकल जाएगा. अभी वो लोग जिसका पेरेंट्स लोग अभी क्या होकर बेटा है हाई पोस्ट में है, उसका बेटा वही पबजी खेल रहा होगा, बाद में एट द एंड में कुछ मेहनत नहीं करके someone will doing the hard work and they will get the proof. This is not a good thing ना. और हम एक बच्चा लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता है कि इंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि like simply sitting in the home, like posting on the Facebook, Instagram में जितना भी कमेंट करके this will not bring the change ना, वो सब चेंजेस नहीं लाएगा. We need to come to the ground, हम लोग ग्राउंड में आना है and we must raise our voice against the corruption practices which are currently happening in APPSCC. अरुणाचल में जितना करप्शन हो रहा है हम लोग खाली और कमीशन में जितना करप्शन हो रहा है हम लोग खाली फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में टाइप करने से नहीं होता है. We need to come to the ground. हम लोग को we need to raise our voice against the corruption practices which are currently happening in अरुणाचल. और ये जो एक होता है ना, जो पेपर जो खरीदता है, जो पेपर ट्रेडिंग ऑफ दिस prestigious क्वेश्चन पेपर इन अंडर द कमीशन APPSCC, इधर में ऐसा होता है कि करप्शन प्रैक्टिस जो करता है उसको भी हम वही कैटेगरी में जो अभी जो हम लोग स्टूडेंट का जो फैटर्निटी जो है, जो ये सब रैली वगैरह में जो इंडल्ज नहीं होते हैं, जो ग्राउंड में आके प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते, दे आर इन द सेम कैटेगरी ऑफ करप्शन प्रैक्टिसेस. मेहनत कोई हम लोग मेहनत करके ग्राउंड लेवल में हम लोग खून पसीना करके मेहनत करेगा. पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कुछ मेंबर वो लोग सिर्फ आके करते रहने से नहीं होगा. दैट इज नॉट द थिंग ना. Each and every single student need to come to the ground and they need to raise their voice against the corruption which is currently happening in Arunachal and Northeast as a whole. तो इसलिए सबको आना है. करप्शन का क्या नहीं बनना है, करप्शन को बढ़ावा नहीं देना है. Everyone needs to come to the ground. सबको ग्राउंड में आना है and we need to raise our voice against the corruption which are currently happening in Arunachal. We are from Nagaland. And even though we are from some state besides Arunachal, but Arunachal is also a part of Northeast. We are like sister states. And the reason we came is because as a student community, as students, we give our efforts and for the opportunities to succeed. We strive for goals. So seeing that our seniors and our brothers and sisters, seeing them not being able to achieve their goals and what they strive for because of this corruption, because of cases like this paper leakage, we are saddened. So we don't represent our state today here, but we represent the general student community, and we are against corruption. It is unfair, and we hope that the deprived students, the aspirants, we hope that they will get justice. आई एम बंतन अतुल और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ यहाँ पे. और आज का रैली एक्चुअली बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं, जब से वो एई एग्जाम हुआ है और जब से वो ग्यामर कादन जी शुरू किया ये सिलसिला, तो हम लोग देख रहे हैं तब से.
और तब से हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स और जो एसोसिएशन है यहाँ में और स्टूडेंट यूनियन ऑफ नेरिस तब से डिस्कशन में है ये इशू को हम लोग किस तरह से टेकअप करें। तो उसको आज डिस्कस करते हैं, इतना समय लेने के बाद आज ये मुकाम में पहुंचा कि लेट्स शो आवर सॉलिडेरिटी। और जितने भी डिमांड्स वो स्टीयरिंग कमेटी रखा है हम उनके 100% साथ है और उनके साथ हम ये भी डे 1 से डिस्कस करते आए हुए कि आई थिंक विसिल ब्लोअर एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अरुणाचल प्रदेश। और कल हम लोग देखा था कि आई थिंक इवन द स्टीयरिंग कमेटी दे हैव सेड दैट, क्योंकि अगर वो एक्ट होगा तो वी बिलीव और विजिल ब्लोअर निकलेगा डिपार्टमेंट से। आज एक स्टूडेंट निकला है, कल को एक डिपार्टमेंट से भी निकलेगा होगा। सो इन दिस वे आई थिंक द सिस्टम कैन बी क्लीन इन सम वे। और स्पेशली इन एग्जाम्स, टेक्निकल एग्जाम्स में जो होता है वो ज्यादातर नेरिस स्टूडेंट्स लोग तो टेक्निकल स्टूडेंट्स लोग हैं। अगर हम इसमें आवाज नहीं करेगा तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइट दिस करप्शन। ये जो पेपर सेलिंग और जो बाइंग वाला सिलसिला है, और जब से लोग बिलीव किया है कि हाँ करप्शन हो रहा है, तब से आई थिंक कल तक तो पकड़ा है। तो वी बिलीव जो SIC काम कर रहा है, जो CBI काम कर रहा है, जितना आदमी पकड़ रहा है अभी तक फिलहाल भी, वी होप जस्टिस विल बी सर्व टू द स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी। और हम पूरे जितने स्टीयरिंग कमिटी है उनके साथ है, उनके डिमांड्स जितने भी रखे हैं, we are all in all, as I said in the intro to the group also, that as in students from NERIS, we are fully involved in academics and also therefore our support morally and any kind of support physically will be always be there. So this protest or this rally is to show solidarity to the steering committee. तो बंता जी, आप जैसे कि एक स्टूडेंट लीडर है जी, तो उसके हिसाब से हम लोग के स्टेट में बहुत सारा DSU है, CBO भी है, तो उन लोग को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस प्रोटेस्ट, और या फिर अपना पर्सनली व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहिए? वेल आई थिंक अरुणाचल में तो हर जगह यूनियन और एसोसिएशन है ही है, और जो एपेक्स बॉडी है वो तो लड़ रहा है शायद। एंड आई बिलीव अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई यूनियन इस इशू को लेके फ्रंट में नहीं आता है तो आई थिंक उसका मॉरल स्टैंडिंग ही इज इन डाउट, बिकॉज दिस इज ए जेन्युइन स्टूडेंट इशू। ये कल हमारा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, जो यूनियन में है और जो यूनियन जिसके लिए करा है उनका ही तो प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी यूनियंस लोग हैं, दे शुड कम फ्रंट, दे शुड स्पीक आउट, हुएवर द ऑफिसर्स और हुएवर द कैंडिडेट्स में भी। क्या पता बहुत लोग हैं जो कैंडिडेट्स लोग को मालूम है नेरिस में, उनका दोस्त है, उनका फैमिली है, बट दे आर हियर टुडे, दे आर शाउटिंग स्लोगन्स टू फिनिश देम, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। आई थिंक ये कोई ऐसा कभी भी कोई भी यूनियन नहीं सोचना है कि नहीं ये जो है वो ग्रुप कर रहा है तो वी विल नॉट इन्वॉल्व इन दैट। हम चाहता है कि स्पेशली स्टूडेंट्स यूनियन जितना भी है अरुणाचल में, दे शुड यूनानिमसली फाइट अगेंस्ट दिस। उनको नेम कॉलिंग करना चाहिए जो इन्वॉल्व है, और अगर प्रूफ हो गया, कन्विक्टेड हो गया जितना भी लोग है, दे शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। दिस वुड बी वन ऑफ द एग्जाम्पलरी punishment for those involved in this FESCO. I think अभी तक जितना हम लोग देख रहा है, they are all in court case. जो कोर्ट केस का सजा और जो कोर्ट केस का सुनवाई है, आई थिंक दोनों, why we felt the importance of this fight is because जितना भी स्टीयरिंग कमेटी लोग डेटा दिया है, आई थिंक देयर वर ऑल फैक्ट, और उसी फैक्ट को लेके आज लड़ रहा है कोर्ट में। एंड वी हैव फेथ इन कोर्ट। कोर्ट ये जरूर हम लोग मान के चलता है कि जस्टिस विल बी सर्व, और अगर सर्व नहीं हुआ कल को, है ना, वी बिलीव दोस स्टीयरिंग कमिटीज एंड अस विल कम टू देम, विल आस्क देम कि हम लोग क्या करें। जो भी होगा एक स्टूडेंट का हित के लिए होगा, स्टूडेंट कम्युनिटी का हित के लिए होगा। विल नेवर बैक आउट फ्रॉम दिस इशू। अरे हम लोग हार गया, ये हो गया, वो हो गया, so therefore we'll never be backing out from this issue. We'll always fight and हम लोग हमेशा साथ रहेगा उन स्टीयरिंग कमेटी के साथ। Thank you so much.